8 angles on the overlap. Roll over 1. Yes, sir. 2. Yes, sir. 3. Yes, sir. 4. Yes, sir. 5. Yes, sir. 6. Yes, sir. 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. Yes, sir. 10. Yes, sir. 11. 12. Yes, sir. 13. Yes, sir. 14. Yes, sir. 15. Yes, sir. 16. Yes, sir. 17. Yes, sir. 18. Yes, sir. 19. Yes, sir. 20. Yes, sir. 21. Yes, sir. 22. 23. Yes, sir. 24. 25. 26. Yes, sir. 27. Yes, sir. 28. Yes, sir. 29. Yes, sir. 30. Yes, sir. 31. Yes, sir. 32. Yes, sir. 33. 34. Yes, sir. 35. Yes, sir. 36. Yes, sir. 37. 38. Yes, sir. 39. Yes, sir. Okay, well, this is Kamar Mahmood. I teach science subject to AD first semester, and our unit is unit number 5, force and motion. I'll ask you a few definitions relating to our new topic. First of all, आप डिफाइन करें रेस्ट क्या होता है? शाबाश, आप बता दें व्हाट इज रेस्ट, आप बता दें. Then a body should not change its position with respect to surrounding. Then it is said to be in rest. Then it is said to be rest. Fine. Motion. What is motion? Last में आप बता दें सर. When the body changes position with respect to surrounding this car. Then it is said to be in the state of motion. Fine. Good. What is force? यहाँ से आप बता दें force क्या है? Ability to push or pull is called. Push or pull is called force or Ability to do work is called force. Push or pull for a body. आप बता दें सर. Force is an agent which moves or tends to move a body is called force. Good. Force is an agent which changes or tend to change the position of a body. ठीक है? किसी बॉडी की पोजीशन को या चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उस एजेंसी को हम फोर्स कहते हैं. Sit down. Displacement. Displacement क्या होता है? यहाँ से पूछता है जो The shortest distance between two points is called shortest distance between any two points is called displacement. ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जहाँ इसकी डायरेक्शन होगी, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. Sit down. Velocity. What is velocity? शाबाश, आप बता दें. The rate of change of speed hardness. आप बता दें. The time rate of change of displacement is called. Time rate of change of displacement. Displacement में change को जब आप कंसिडर करेंगे, that is called velocity. इसकी यूनिट क्या होगी? Meter per second. मीटर पर सेकंड. Good. Acceleration. What is acceleration? Change in velocity per unit time is called acceleration. इसकी
Meter per second meter per square. second square. Good. Thank you. That's it. Topic for today is Newton's laws of motion. There are three laws of motion, three Newton laws of motion. Newton first law, second law, and third law of motion. Newton first law of motion. This law states that in the absence of external force, a body at rest remains at rest and a body in motion continues its motion. एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और एक बॉडी जो मूव कर रहा है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो इट मींस इस लॉ के दो पार्ट आ गए। पहला पार्ट ये स्टेट करता है एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये स्टेट करता है एक बॉडी जो मूव कर रहा है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसकी दो डिफरेंट एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं और दो लड़के मुझे सही नहीं तो एग्जांपल्स करेंगे। कौन करेगा जी? ये बॉडी जो रेस्ट में रहेगा, ये तो सिंपली हम देख सकते हैं टेबल रखा हुआ है, ये तो नहीं रहेगा जब तक आप इसको ड्रैग ना करें, इसकी पोजीशन चेंज ना करें, क्लियर। और एक बॉडी जो मूव कर रहा है वो कंटिन्यूसली मूव करेगा, ठीक है। ये गाड़ी की एग्जांपल आप आ जाए, अब देखें नीचे पास। First of all, we have a car. We push the car. अब इसमें यह है कि ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है, इसको मूव करते रहना चाहिए, लेकिन बाहर से फोर्स इसको रोक रही है, ठीक है। आप इस तरफ बैठे, इस तरफ बैठे। अब देखिए बाहर से इसने खुद इसको रोका है, अदरवाइज ये मूव First of all, we push the car. The car moves. After some time, we break up and discount the distance. Why is speed of distance? Because three forces are acting. अब इसके रास्ते में अगर आप हाथ रखें तो ये रुक जाएगा, क्लियर। Because three forces acting upon me. First of all, gravity, and second force air resistance, and three one is the traction between फाइन, force. ठीक है, रखते। तो मैंने कहा था कि एक बॉडी जो रेस्ट में रहते हैं, मूव जो कर रहा है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। तो पार्ट वन तो डेली लाइफ में हमें इसी तरह नजर आता है कि एक चेयर को आप यहाँ पे छोड़ के जाएं, कल आपको वहीं पे नजर आएगी, ठीक है। महीना पूरा छुट्टियां हो उसके बाद देखेंगे उसकी पोजीशन वहीं पर होती है। तो एक बॉडी जो रेस्ट में रहती है। सेकंड पार्ट डेली लाइफ में हमें ऐसा नजर नहीं आता, ठीक है। एक पत्थर को फेंकते हैं, थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है, ठीक है। एक फुटबॉल को किक लगती है, वो कुछ डिस्टेंस से और करके रुक जाता है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट बॉडी के ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि वो बॉडी थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक जाती है। तो ये पार्ट डेली लाइफ में हमें गलत नजर आता है, गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ हिडन फोर्सेस इसको रोक रही हैं। वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? Gravitational force. एयर रेजिस्टेंस, gravitational force and frictional force। देखिए एक फुटबॉल को हमने किक लगाया है, तो ये दरमियान में हवा का समुद्र है जो उसको रोक रहा है, हवा में रोक रहा है, तो बॉडी को मोशन से रोक रहा है। दूसरा ग्रेविटी, हर बॉडी को जमीन अपने मरकज की जानब खींच रही है। फुटबॉल आगे जाना चाह रहा है तो जमीन उसको अपनी जानब खींच रही है, इसलिए उसको मोशन से रोक रही है। तीसरी बात, जब भी दो बॉडी ऊपर नीचे मूव करेंगी, स्लाइड करेंगी, तो उनके दरमियान एक अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, क्लियर। तो फुटबॉल आगे जाना चाह रहा है, वो फ्रिक्शन, वो रगड़ उसको रोक रही है। अगर ये तीन फोर्सेज, जो हिडन फोर्सेज नजर नहीं आती, ये ना हो तो एक फुटबॉल सारी ओर मूव करता रहेगा। स्पेस में ये तीनों चीजें नहीं होती, ये तीनों फोर्सेज नहीं होती, तो स्पेस में एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। मैथमेटिकली इस लॉ को आप यूं कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ force is zero, then
a body at rest remain at rest. Body in motion continues uniform motion. If force is zero, then acceleration is zero. Clear? Newton's first law is also called law of inertia. Inertia क्या है जी? It's the property of material object due to which a body opposes any change which occur in it. जब बॉडी की पोजीशन में हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं, बॉडी उसको अपोज करता है. फॉर एग्जांपल, एक बच्चा साइकिल पे जा रहा है, तो साइकिल के साथ वो मूव कर रहा है. जब अचानक ब्रेक लगाता है तो आगे की जानब गिरता है. क्यों गिरता है? इसलिए कि उसका बॉडी साइकिल के साथ मूव कर रहा है. जब ब्रेक लगी है तो साइकिल तो जगह पे रुक गए, उसका जिस्म जो पहले से मूव कर रहा है अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है और उस चेंज को अपोज करता है, वो आगे की जानब गिरेगा चलने के साथ. इनर्शिया. इसके अलावा और काफी सारी इसकी एग्जांपल हो सकती है कि एक कार्डबोर्ड आपने छोटा सा गत्ते का एक पीस में, उसके ऊपर आप सिक्का रखें, ठीक है, और उस गत्ते के पीस को आप ग्लास के ऊपर रखें. कार्डबोर्ड को आप पुश करें, वो सिक्का उसी ग्लास में जाकर गिरेगा. क्यों? आपने जो पुश किया है वो कार्डबोर्ड को पुश किया, ठीक है. सिक्का उसके ऊपर रखा हुआ था, सिक्का भी रेस्ट में था, वो कॉइन भी रेस्ट में था और वो कार्डबोर्ड भी रेस्ट में था. आपने पोजीशन चेंज किया कार्डबोर्ड की, कॉइन ने उस चीज को अपोज किया उसी क्लास में जाकर. हमारे पास मौजूद है क्लास भी है, ठीक है, कार्डबोर्ड भी, सिक्का भी है. आप में से कुछ परफॉर्म कर रहे ज़्यादा अच्छा हो. आज सिक्का इसके ऊपर रखें, इसी तरह आप अब सब लोग देखें. कार्ड जरा फोर्स के साथ आएंगे, अब देखिए, ठीक है, ये कार्डबोर्ड जो है जिसको पुश किया गया है वो मूव करके आगे चला गया, जबकि कॉइन इधर ही क्या कर देता है, ठीक है, अपनी पोजीशन, क्योंकि उस चेंज को वो अपोज करता है. दिस इज कार्ड इनर्शिया. क्लियर? सेकंड लॉ. Newton's second law states that whenever we apply force on a body, then that body has some acceleration. This acceleration is directly proportional to mass, directly proportional to applied force, and inversely proportional to mass of the body. That is, acceleration produced is directly proportional to applied force and inversely proportional to mass of the body. जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे बॉडी पे एक्सेलरेशन कम होगा. और दूसरी बात ये कि मैस ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. क्लियर? तो ये इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं कि एक फुटबॉल है अगर हमारे पास, इस पर फोर्स हम कम लगाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कम उसमें एक्सेलरेशन होगा. ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. आप में से कोई ये कहा जाए फुटबॉल हमारे पास है, तो ये प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लें. यहाँ पे आगे रख के उधर फ्रंट पे आप स्लोली पहले पुश करें, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है स्लो फोर्स के साथ. अब वहीं से आप इसको थोड़ा ज्यादा फोर्स के साथ पुश करें. अब देखें फोर्स इंक्रीज हुई है, फोर्स इंक्रीज हुई है तो एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा होगा. क्लियर? There is direct relationship between force and acceleration. जितनी फोर्स इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा. उसके बाद मैस के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है. मैस बड़ी होगी, लार्ज मैस होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी. मैस स्मॉलर होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. इसको भी आप कर सकते हैं कि हमारे पास ये दो बॉल है, एक हार्ड बॉल है और एक टेनिस बॉल है. ये लाइटर है, ये हैवियर है. अब इन दोनों को इकट्ठे अगर आप एक ही फोर्स के साथ पुश करें तो क्या होगा कि जो लाइटर बॉडी है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. क्लियर? आप में से कोई ये कहा जाए इनको एक ही जगह पर रख के. और I have two balls in my hand. One is the heavier mass and
second ball is the door first side. अब मैं दोनों को साथ में इकट्ठे आप पाँव के साथ खेलूंगा। अब हम देखेंगे कि जिस बॉल की मार्क्स ज्यादा है वो आपको अगर नजर नहीं आ रहा है ऐसे खड़े होकर इसको देखें कि ग्राउंड पे ये बॉल वहीं पे आप खड़े होकर देख सकते हैं। आप इकट्ठे लेके पाँव के साथ आप पाँव के साथ रखे आप पुश करें इसको। देखें जो लाइटर बॉडी है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा है। क्लियर? छोड़ इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें। A इज प्रोपोर्शन टू F ओवर M। A इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट के लिए आता है K F ओवर M, where K is constant of proportionality and its value is taken equal to 1 यूनिट वैल्यू लेते हैं तो आपके पास A क्या आ जाएगा F ओवर M, या इसको आप कह सकते हैं MA इज इक्वल टू F और F इज इक्वल टू M, which is mathematical form of Newton's second law of motion. Clear? Yes. Third law of motion states that to every action there is a reaction, which is always equal in magnitude but opposite in reaction. हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है? मैग्नीट्यूड सेम होता है फोर्सेस का, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बॉल है उसको आप दीवार पे थ्रो करें, ठीक है? ये आपका एक्शन है, बॉल जाके हिट करेगी दीवार को, ये एक्शन है, और दीवार उसको पुश करेगी बैकवर्ड, ये उसका रिएक्शन है। जितना एक्शन हुआ उतना रिएक्शन होगा, ठीक है? जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी है उतना बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्लियर? अगर बॉल को आप बॉडी 1 कह दें और दीवार को आप बॉडी 2 कह दें तो बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगाएगी, ठीक है? और बॉडी 2 भी बॉडी 1 पे फिर फोर्स लगाएगी। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगी, ठीक है? लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? लॉट ऑफ एग्जांपल इसमें हो सकती है। परिंदे हवा में उड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, परिंदे परों के लिए हवा को नीचे प्रेस करते हैं, ये एक्शन है, ठीक है? एक्शन डाउनवर्ड आ गया, रिएक्शन उसका अपोजिट होना चाहिए, तो एज ए रिएक्शन वो अपवर्ड होता है। क्लियर? इसी तरह जमीन का हमारा चलना, मैं जमीन को पुश कर रहा हूँ पीछे, पाँव से पीछे पुश कर रहा हूँ, रिएक्शन है, रिएक्शन के तौर पे आगे जा रहा हूँ। क्लियर? पहले एक्शन होगा, जितना एक्शन होगा फिर उसके बाद रिएक्शन होगा, उतना ही रिएक्शन होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन उसकी अपोजिट। क्लियर? आपने कभी ऑब्जर्व किया हो परिंदे जब ऊपर जा रहे होते हैं एक्शन उनका डाउनवर्ड होता है, परों को नीचे प्रेस करते हैं, एक्शन डाउनवर्ड, रिएक्शन ऊपर, और एक खास हाइट पे जाकर परिंदे जब फॉरवर्ड जाते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं, उस वक्त आप देखते हैं, ऑब्जर्व करें तो उनके पर जो है मौजूद होते हैं चप्पू की तरह। अब हवा को पीछे प्रेस कर रहे हैं, एक्शन पीछे है, रिएक्शन आगे। क्लियर? और बास केसेस में आपने ऑब्जर्व किया हो कि वो ऊपर भी जा रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। उस वक्त आप अगर उनके विंग्स को देखें, उनके परों को देखें, सेमी कर्व्ड है इस तरह से, ठीक है? हवा का एक कंपोनेंट उसको नीचे प्रेस कर रहे हैं और एक कंपोनेंट को पीछे प्रेस कर रहे हैं, तो कुछ उनको अप्रेस में ऊपर भी जा रहा है और कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? अब एक्टिविटीज में कुछ आपको दूंगा एग्जांपल्स हैं इन्हीं तीनों लॉज के मुताबिक। ये आपने इन एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? न्यूटन 3 लॉज जो भी आपने किए हैं ये उसी की एग्जांपल्स हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है, अपने अपने ग्रुप्स में पहले डिस्कस करना है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है? ये 4 ग्रुप ही बना लें, ये फर्स्ट ग्रुप,
इधर रोल नंबर 1, ठीक है, 2, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Clear? आपको याद है? इसको तरतीब से आप बताओ। Group number 1, our question
What happens if we increase force and distance? What happens if we increase force on the same body? एक ही body है, force increase करने से क्या फर्क पड़ेगा? लेटर सेकंड का एग्जांपल जैसे कि पहले दो बार रखी थी हमने और दोनों को पुश किया था एक ही फोर्स से, तो एक का मास कम था एक का ज़्यादा था, जिसका मास कम था और ज़्यादा उसने ट्रैवल किया, जिसका मास ज़्यादा था उसने कम ट्रैवल किया। इसमें ये कहता है कि मैच यहाँ पे अगर चेंज नहीं करनी है आपने, फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जिसकी फोर्स ज़्यादा लगेगी उसको वेट ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। गुड। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन करें। What happens if two different masses are thrown with the same force? ये न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल है कि अगर एक गाड़ी को हम दो डिफरेंट मास वाली दो गाड़ी को हम एक ही फोर्स से पुश करेंगे तो जिसका मास लाइटर होगा वो ज्यादा दूर जाएगी और जो हैवियर मास रखी होगी वो थोड़ी देर जाएगी। गुड। लाइटर बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। गुड। थर्ड रो। I have a question. Why a car stop by applying force? A car stop by applying force because the brakes of a car apply force on the wheel. The acceleration of a car becomes zero. This way the car becomes stopped. जब गाड़ी चलती है अचानक रुकती है तो ब्रेक की वजह से रुकती है। जब हम उसके ब्रेक दबाते हैं तो उसके व्हील जो है वो मूविंग जो है वो करना है। ये कौन से लॉ की एग्जांपल आ गई? ये एक्सटर्नल फोर्स आप ले रही है तो फर्स्ट लॉ। ठीक है? और ग्रुप Ion falls in the glass if we have pushed a cardboard. अगर एक काइन जो है सिक्का जो है वो ग्लास में क्यों गिरता है अगर आप कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया, ये सिक्का जो होता है वो एक रेस्ट में होता है, जब हम उसको मोशन में लाते हैं कार्ड को इससे पुश करते हैं तो वो अपने उसमें होता है तो इनर्शिया की वजह से वो उसमें गिर जाता है और कार्ड आता है। इसको ज़रा परफॉर्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका walking on earth, third law की एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन